नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत का किताब इंडियन पॉलिटी से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये किताब आपका यूपीएससी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम करेंगे आपका सेट प्रैक्टिस नंबर 42। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 41 होगा। ठीक है, तो आपका सेट नंबर 42 होगा। ठीक है, तो सेट नंबर 42 और आपका चैप्टर नंबर 41 होगा। ठीक है, और इसका पार्ट ए एक ही पार्ट में इसको कवर करेंगे, एक पार्ट में। ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन ओनली आपका इसमें क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, तो और पार्ट नंबर 7 इसका चैप्टर नंबर 41 फाइनेंशियल कमीशन का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने फाइनेंस कमीशन 41 चैप्टर नंबर आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डज द फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो वन का ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डज द फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड and the principles which should govern the grants in need of the revenues of the state out of the consolidated fund of India. We have to consider the following statement. consider the following statement with regard to the finance commission. तो 2 का which of the statement are only one is right. ठीक है, तो consider the following statement with regard to the finance commission. The recommendation of the finance commission cover a period of 5 years. तो आपका 3 है which one of the following statement about the finance commission is not है। तो 3 का ऑप्शन बड़ी, all the members have to be from Indian Economic Service or Indian Statistical Service. तो which one of the following statement about the finance commission is not है। तो all the members have to be from Indian Economic Service or Indian Statistical Service। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका जो है सही है। ठीक है, the commission comprises a chairman and 4 other members। सही है, the parliament is authorized to determine by law the qualification of the members of the commission and all the appointments are made by the president of India। कुछ आपका 4 है, assertion है और रीजन आर है। The finance commission prescribe the framework for the working of the planning commission and रीजन आर है the jurisdiction and functions of the finance commission are outlined in the constitution of India। तो 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये आपका गलत है बट आर सही है। ठीक है, तो assertion ये the finance commission prescribe the framework for the working of the planning commission, ये आपका गलत है। and the jurisdiction and function of the finance commission are outlined in the constitution of India, सही है। तो 5 है, which of the following are the issues on which recommendation to be made by the finance commission to the president of India are specified in the constitution of India। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 आर आपका 1 2 3 आपका तीनों सही है। ठीक है, तो which of the following are the issues on which recommendation to be made by the finance commission to the president of India are as specified in the Constitution of India, the principles which should govern the grants in need of the revenues of the state out of the consolidated fund of India, measures need to be augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayat in the state, measures need to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the municipalities in the state। मेरा पास 6 है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 आपका फाइनेंस कमीशन और लिस्ट 2 आपका चेयरमैन है। तो आपका यहाँ पे मिलाना है, तो 6 का राइट कोड है ऑप्शन नंबर है 2143। ठीक है, तो आपका जो है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, कैसी नहीं होगी। 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे आपके पीवी राजा मन्नार और 6th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे आपके ब्रह्मानंदा रेड्डी और 8th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपका वाईपी चौहान थे। ठीक है, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कैसी नहीं होगी, 4th फाइनेंस कमीशन के पीवी राजा मन्नार, 6th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ब्रह्मानंदा रेड्डी और 8th फाइनेंस कमीशन के आपके चेयरमैन थे ये वाईपी चौहान। कुछ आपका 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन। तो इसमें से कौन सा सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 180 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपका सही है। द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सही है। इट इज टू एक्ट एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म, सही है। द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ये भी सही है। क्वेश्चन 8 है, द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन हैज बीन अंडरमाइंड बाय द। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन में सी, प्लानिंग कमीशन।
द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन हैज बीन अंडरमाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन 9 आपका है। असर्शन और जनारे, तो असर्शन ए का द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर डिस्टिंक्टली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीजन आ रहा है द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपका ये गलत है, ठीक है। द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर डिस्टिंक्टली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका गलत है। और द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका सही है। कुछ आपका 10 है। द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अराइजिंग फ्रॉम। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफाइड taxes without the surcharge between the union and the state. So the finance commission recommends the distribution of the net profit of the union government arising from specified taxes without the surcharge between the union and the state. Question आपका 11 है। The principles concerning the provisions of the grants made to the state out of the constituted fund of India are recommended by the 11 correct answer है option number C finance commission. The principles concerning the provisions of the grant made to the state out of the consolidated fund of India recommended by the finance commission. क्वेश्चन 12 नंबर है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो 12 का राइट कोड है ऑप्शन में भी 2 3 4 1, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन बॉडीज होगा, तो ये आपका आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में 280 में बताया गया, आर्टिकल 280 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल 315 में, और इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 में, और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्टैक के बारे में आर्टिकल 148 में कहा गया है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 एंड कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148। नंबर 13 है द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड क्राइटेरिया फॉर। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंडेड क्राइटेरिया फॉर। तो 13 करेक्ट आंसर में सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। 14 नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 आ रहा है, ठीक है। द फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स of taxes to be shared between the union and the states and the principles governing grants in aid to the state and any other matter concerning financial relation between the union and the state, ठीक है। तो 1 3 4 आपका सही है, अब बाकी आपका 2 गलत है, ठीक है। द फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट एंड एनी अदर मैटर कंसर्निंग फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। 15 है दैट the qualification for the members of the finance commission. The qualification for the members of the finance commission, तो 15 correct answer option में भी can be prescribed by the parliament of India। 16 consider the following statement about the finance commission। तो 16 correct answer option number A, ठीक है। 1 by 2 आपका सही है। तो which of the statement are right 1 and 2। The consider the following statement about finance commission। The duty of the finance commission is to make recommendation as to the distribution of revenue resources between the union and the state and it is appointed every 5th year by the president of India, ठीक है। आपका 3 of 4 गलत है, ठीक है। 17 है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कह रहा है द फाइनेंस कमीशन डिपेंड्स मेनली ऑन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्टेट सप्लाइड बाय द स्टेट देमसेल्फ। स्टेटमेंट 2 है दिस इंफॉर्मेशन एंड डाटा नॉट बी फ्री फ्रॉम द हिडन अनरियलिटीज एंड attempt to secure more financial assistance and window dressing of the financial position of the state cannot be ruled out। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी both the statement are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1। तो आपका दोनों सही है लेकिन आपका explanation सही नहीं है, ठीक है। तो the finance commission depends mainly on the data and information of the financial needs of the state supplied by the state themselves and this information and data may not be free from the hidden unrealities and attempt to secure more financial assistance and a window dressing of the financial position of the state cannot be ruled out। कुल 18 है which one of the following is the function of the finance commission। तो 18 का ऑप्शन में सी determining the principles governing grants in aid the state। तो which one of the following is the functions of the finance commission। तो determining the principles governing grants in aid the state। 19 से which of the following are the function of the finance commission। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए only one is right। making recommendation as to the principles governing grants in aid to the revenue of the state, ये आपका सही है और बाकी 2 गलत है। to suggest measures to augment
the consolidated fund of India, making recommendation as to the principal governing grants in it of the revenue of the state to suggest measures augment to the consolidated fund of India। गलत है, ठीक है, पहला आपका सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, विन विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द फाइनेंस कमीशन डेल्ट विद, तो 20 का ऑप्शन में आर्टिकल 280, इन विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द फाइनेंस कमीशन डील विद आर्टिकल 280। 21 में क्वेश्चन है, लिस्ट 1 आपका फंक्शन और लिस्ट आपका अथॉरिटी है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो 3415 आपका सही जगह, ठीक है, 3415। तो ये प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, तो आपका फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट फाइनेंस कमीशन, कोऑर्डिनेशन इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट, तो कोऑर्डिनेशन इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट कैबिनेट सेक्रेटरी, और आपका अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस ये आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड अल्टरनेटिव एक्सपेंडिचर पॉलिसी एस्टीमेट कमिटी, ठीक है, तो ये आपका सही है। तो प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट, तो फाइनेंस कमीशन, कोऑर्डिनेशन इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट कैबिनेट सेक्रेटरी, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अल्टरनेटिव एक्सपेंडिचर पॉलिसी एस्टीमेट कमिटी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है आपका चैप्टर नंबर 41 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 42, जो कि आपका होगा नेशनल कमीशन फॉर एससीज, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए, जो भी एमसीक्यू कल शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।